Good morning, student. Today in chemistry class, we will start new chapter, that is D and F block elements. In this chapter, we will generally discuss about the general properties of the D and F block elements. There are some compounds are also in the D and F block, their preparation and properties, but we have not to learn about that. Okay. In today class, we will see what are the D block element or M block elements. Okay. Then first of all, we will see the transition element. Before that, D block elements are those elements in periodic table which contains which are in the periodic table from group 3 to 12. Okay. D block elements in periodic table belong to group group 2 to 3 to 12 3 to 12. There are three series. There are some series of these elements. Okay, in these elements electrons are filled in d orbital progressively. Therefore, they are referred as referred they are known as d block elements. ओके, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो है डी में जाते हैं और वो भी प्रोग्रेसिवली एक के बाद एक जो है कि आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, इसलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. ओके, नाउ these elements have three series. D block elements has three series. Okay. First is the, have you noted this? Once again I will tell you what are these. D block elements in periodic table belong to the group 3 to 12. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में 3 से लेकर के 12 तक यानी 3 to 12 ग्रुप तक आते हैं. और ये एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में जाते हैं प्रोग्रेसिवली एक के बाद एक. देयरफॉर इनको हम किस नाम से जानते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं. ओके, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तीन सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज. ओके,
3D series, 4D series, and 5D series. Okay, have you noted this? Chalo. First series, 3D series, 3D series, and element are scandium 2, scandium 2, G, scandium 2, G. Atomic number 21 and 230. Okay. Second series, second series is 4D series, and elements belong to this are yttrium, yttrium to cadmium. Okay. If you add 18 here, you will find 8 and 1 9, 39 to 48. Okay. And third series is 5D series. Okay. And this series is incomplete. This series is incomplete, and it has lanthanum. If you add 32 here, you will find 1 and 61, 39 and 32 is 71. 71 to 71 to Hg, Hg 48 plus 32 is 80. Okay. As I have told you about the magic number, if you add the magic number in atomic number, then you will find the next uh, element. What are the next element? Okay. अब इन दोनों के बीच में कुछ omitted है, omitted, और omitted जो एलिमेंट है वो 72 से लेकर के सीरियम टू ल्यूटीटियम जो है, सीरियम टू ल्यूटीटियम, ओके, ये 14 एलिमेंट ओमिटेड है इनके बीच में, जो कि सीरियम टू ल्यूटीटियम है. ठीक है. नेक्स्ट वन सीरीज इज फोर्थ series you can take here. You can write here fourth series, but fourth series is fourth series. F-O-U-R. You can write here fourth series. Fourth series. Here is 6D series. Start from actinium. Start from actinium. PC. Atomic number 89. ओके. तो ये देख लिया आपने कि 4 सीरीज है, एंड दिस सीरीज इज इनकम्प्लीट. दिस सीरीज is incomplete.
ओके, पीरियोडिक टेबल में ये तो हमारे डी सीरीज है, और जो इनकम्प्लीट बोला जाता है वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट तो बहुत से दिखाई देते हैं, वहाँ पे पूरा भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उन सारे एलिमेंट्स के अभी पूरी तरह से प्रूफ नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। ओके, ओके, now we will see the next point. What is that? In periodic table, in periodic table, there are two series of inner transition element. Inner transition element elements. Okay, one is lanthanide, lanthanide, and other is actinides. All these series contains 14 element. Okay, and these are known as lanthanides and actinides. इनको हम लैंथिनाइड और एक्टिनाइड्स कहते हैं क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं जो इस सीरीज में, इसमें पहले वाले में लैंथेनम की तरह से इनकी प्रॉपर्टी है, लैंथेनाइड से मिलती जुलती है लैंथेनम से, और जस्ट बाद में जैसे अभी हमने एक लिखा था ना सीरियम टू लिथियम जो है ये लैंथेनाइड से वहां से ओमिटेड है पीरियोडिक टेबल में। वहां पे अगर हम देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में हमें क्या दिखता है कि नीचे की ओर एफ ब्लॉक एलिमेंट है, वो सारे जो है लिथियम और एक्टिनियम के बीच में है, उनको हम बाहर लाते हैं क्योंकि उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाते हैं, इसलिए उनको हम एफ एलिमेंट बोलते हैं। और उनको जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। वाई वी कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? फर्स्ट देयर आर three incomplete subcell in these elements. Okay, therefore they are called, and you can say, and they are all and these subcell electrons take part in reaction. Okay, since their last electron enter into, since their last electron enter into D subset, F subset, therefore they belong to
belong to F block. ओके, ये F ब्लॉक में क्यों आते हैं हमने ये भी जान लिया कि ये F ब्लॉक में क्यों आते हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि यहाँ पीरियोडिक टेबल में दो दो सीरीज है, देयर आर टू सीरीज। ओके, ए ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इनके पास 3 इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, सबसे यहाँ आउटर मोस्ट सेल्स, आउटर मोस्ट सेल, फिर पेनल्टीमेट सेल, फिर एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो 3 सेल इनकम्प्लीट होती है, आउटर मोस्ट सेल, पेनल्टीमेट सेल एंड एंटी पेनल्टीमेट। suppose this is the nucleus and this one is the outermost and this one is the penultimate and this one is the anti penultimate. This is the outermost, this is the penultimate and this one is the anti penultimate, and all these three are incomplete in the inner transition element, and since their last electron enter into the F subcell, therefore they are belong to the F block. Okay, have you noted this? Okay. Transition elements. Transition elements. Okay. Elements having these subcell for accommodating last electron are known as D block elements. Okay, D block elements. Since D orbital is partially filled partially filled in ground state and or in excited state, therefore they are called transition element.
ओके, ठीक है। डी ऑर्बिटल जो है कि पार्शियली और पार्शियली या जो है कि पार्शियली फील्ड होता है डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में। तो इसलिए इनको ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि इनके दोनों जो ऑर्बिटल आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट होते हैं वो सभी जो है कि पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते रहते हैं, एस और पी ब्लॉक की तरह से फिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम जो है कि ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि पीरियोडिक टेबल में देखेंगे एस और पी ब्लॉक के बीच में है ये, और जो इनकी प्रॉपर्टी है एस और ब्लॉक पी ब्लॉक से थोड़ा डिफरेंट है। मेटेलिक प्रॉपर्टी तो है लेकिन इनकम्प्लीट, दो सेल इनकम्प्लीट है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, इसी वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट इसको, ये जान लीजिए ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट में हमारा जो आयरन है, आयरन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल है, सबसे ज्यादा भी है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल है। आयरन इज मोस्ट एबंडेंट and widely used metal, ओके। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये मेटल है, ठीक है। और इसको ऐसे लिख दे, वाइडली यूज्ड ट्रांजिशन मेटल ज्यादा अच्छा, ट्रांजिशन मेटल। तो कहने का मतलब है कि ट्रांजिशन मेटल में सबसे ज्यादा अगर कोई मेटल यूज हुआ है या हो रहा है या होता है तो वो क्या है, आयरन, ओके। अब हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज पे आएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट पे, और उसमें हम सबसे पहले जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। इसमें अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट में देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट टू सेल इनकम्प्लीट होते हैं। क्या बोला हमने, आउटर मोस्ट टू सेल इनकम्प्लीट होते हैं, एक तो आउटर मोस्ट और एक पेनल्टीमेंट, ओके। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है राजेश, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो n-1 b 1 to 10 4s 1 to 2, ओके। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। और जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम Cd एंड मरकरी Hg has electronic configuration electronic configuration
configuration NS1 D10 4S2। ठीक है, ये जो जिंक कैडमियम मरकरी है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है कि केवल आउटर मोस्ट सेल ही इनकम्प्लीट होती है, बाकी सारी सेल क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इन्हें हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी कंसीडर करते हैं। दे आर नॉट कंसीडर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते, इनको हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। ठीक है, these are I will use this since zinc, cadmium and mercury Hg has complete outermost cell, sorry, have has only one have only outermost incomplete cell. So they are considered as non-transition element. ओके, क्योंकि इनका ये पूरा होता है, क्या पूरा होता है, इनर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, यानी जो पेनल्टीमेंट होता है पूरा होता है, केवल आउटर मोस्ट जो होता है इनकम्प्लीट होता है, लाइक यस एंड पी ब्लॉक। तो इस वजह से हम इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये डी ब्लॉक में है, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ है, तो उसके पीछे रीजन है, तो उनका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में जाके ही कंप्लीट होता है। एक बार फिर से जान लो, जिंक, कैडमियम और मरकरी के केवल आउटर मोस्ट सेल ही इनकम्प्लीट होते हैं, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट होते हैं, एस ब्लॉक के इनकम्प्लीट होते हैं। तो हम इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रखा गया है, तो उसके पीछे रीजन है कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कि डी सब सेल में जाके कंप्लीट होता है। ओके, तो इसलिए हम इनको डी में तो रखते हैं, बट वी कैन नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट because they have only outermost cell incomplete. Okay, have you noted this? Okay, now we will see the electronic configuration of some other elements. Okay, and here is scandium P one P4 P4
अब ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है। ठीक, ये जो है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है और इसका एटॉमिक नंबर है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, ये इसका एटॉमिक नंबर है। अब इनके आउटर मोस्ट शेल का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आर्गन या 3d1 4s2, फिर यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 3d2 4s2, फिर यहाँ हो जाएगा आर्गन 3d2 3 4s2। अब ये हमारा क्रोमियम जो है एक्सेप्शन उन रूल को फॉलो करते हुए ये हो जाएगा 3d5 4s1। तो ये हमारा है एक्सेप्शन, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इसका थोड़ा सा ख्याल करना है। इसके बाद हमारा हो जाएगा AR 3d5 4s2, AR 3d6 4s2, AR 3d7 4s2, AR 3d8 4s2। फिर एक एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे AR 3d10 4s2 और AR 3d10 और सॉरी यहाँ पे 4s1 होगा, 3d10 4s1 सॉरी 2। तो ये फर्स्ट सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया और इस फर्स्ट सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3 एक्सेप्शन है। एक तो क्रोमियम है 3d5 4s1, यहाँ पे होना चाहिए था 3d4 4s2, लेकिन ऐसा नहीं है, 3d5 4s1 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे हमें यहाँ क्रोमियम कॉपर से मिला, कॉपर का 3d9 होना चाहिए था, 3d9 4s2 होना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्या हो गया 3d10 4s2। ओके, और यहाँ पे जिंक का क्या हो गया 3d10 4s2, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट 3d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बाकी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।